تو آپ مجھ سے ہی کیوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ یعنی اسلام پر آپ بالکل مطمئن ہیں، یہاں تک کی جو جرنی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے۔ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا سب سے زیادہ؟ آپ اگر اسلام قبول کر لیں گی تو کیا آپ کی فیملی آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ ایز این ایتھیسٹ تو آپ کو ایکسپٹ کیا، ایز اے مسلم آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اچھا، میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول اور ان کے بندے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ ڈیپ حضرت تھنکر جی حضرت جی ایک بیک اسٹیج میں ایک ڈاؤٹ فل گرل نام سے ہیں، تو مجھے شروع میں کسی نے بتایا تھا اسٹریم پہ لے کہ لیں، یہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، اسلام قبول کرنا چاہتی، ڈاؤٹ فل نام رکھا ہے انہوں نے جی۔ ہیلو جی بھائی، جی سر، میں وہ سنڈے کے دن سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ اچھا، عامر بھائی بتائیں مجھے۔ ہوں، جی میں اسلام بولیے۔ قبول کرنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنے آئی ہوں جی آپ کے پاس۔ اچھا، تو غالباً مجھے عامر بھائی کا میسج آیا تھا، اور اس وقت میں ہاں مصروف تھا، میں اسٹریم پر نہیں آ سکتا تھا، شاید وہ آپ ہی کے تعلق سے ہوگا۔ تو آپ مجھ سے ہی کیوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں آپ سے پڑھنا اس لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام آپ نے یعنی اسلام پر آپ بالکل مطمئن ہیں، یہاں تک کی جو جرنی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے۔ جی میرے گھر والے پورا بہت ریلیجیس ہے، پھر میں پہلے ناستک ہی تھی، مطلب ہندو ریلیجن کے اوپر میں کچھ مانتی نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی اتنے بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے مورتیاں، پھر بھگوان تو مطلب میں یہ بلیو کرتی تھی کہ کوئی ایک سپریم پاور ہے جو کہ پورا دنیا بنایا ہے، یہ بس یہ بلیو کرتی تھی۔ لیکن میری ممی پاپا پوجا کرتے تھے اتنے سارے مورتیاں سب، میں سوچتی تھی اس میں سے صحیح کون ہے۔ تو پھر میں ہندو اسکرپچر سب پڑھی، پھر بائبلس بھی پڑھی سب۔ ہندو اسکرپچرس میں ویداس میں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا، گڑبڑ لگا سب۔ پھر بائبل بھی پڑھی، وہ بھی جیسس کو گاڈ ہی مانتے تھے، تو پھر میں گاڈ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو میچ نہیں کیا۔ پھر اسلام کے بارے میں پڑھی، قرآن میں پڑھی، پھر میں انسپائر ہوئی، تو پھر میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا سب سے زیادہ؟ پورا جو میں آئی تھی عامر بھائی کے اسٹریم میں، وہ ایک بھیا تھے جو ایک سیریز مجھے بتائے تھے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے، اوکے، تو ان جی ان کا سیریز دیکھ کے ہی میں بہت انسپائر ہوئی۔ تو میں ٹھیک سوچی ہے، مطلب اگر صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں سب پڑھ کے انسپائر ہوئی۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اگر اسلام قبول کر لیں گی تو کیا آپ کی فیملی آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ ایز این ایتھیسٹ تو آپ کو ایکسپٹ کیا، ایز اے مسلم آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اچھا، تو پھر آپ پبلکلی یہ اعلان کریں گی اپنی فیملی کے سامنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں پوچھیں گے تو چھپاؤں گی نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، ان سب کی آپ کو مکمل معلومات ہے؟ میں روزہ رکھ چکی ہوں، اس مہینے رکھی تھی، پورا 30 روزہ رکھی تھی، گڈ، اور میں پردہ بھی کرتی ہوں۔ بس ابھی ماشاء تک اللہ، مطلب جی ابھی نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، تھوڑا بہت ابھی سیکھ رہی ہوں میں، اچھا، گڈ، سیکھ لوں گی۔ چلے صحیح ہے، بہتر ہے۔ تو سے ایز آئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، اشہد اشہد اللہ اللہ الہ
इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह। आगे और कहिए, मैं ईमान लाई मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मजबूती के साथ जमाए रखे और आपके ज़रिए दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। आई नो कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल मौका है, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका जो लाइव मैनिफेस्टेशन है वो खुद आपकी अपनी शख्सियत है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हम सभी के लिए आप दुआ करिए, चूँकि इस वक्त आप सबसे ज़्यादा समझ लें कि अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि आपके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, सब सिर्फ सवाब ही सवाब है। माशाअल्लाह। मैं तो बस इतना ही मैं हमेशा यही सोच के रोती हूँ कि अल्लाह को जानने से पहले जो मैंने गुनाह सब किए हैं वो सब लेके मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी वहां पे जाके। वो सब खत्म। जो कुछ अल्लाह को जानने से पहले किया है अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। एक वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या एक सहाबी का है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो क्या उन अच्छे कामों का बदला मुझे मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्लमता अला मा अस्लफ्ता मिन खैर। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है ना, ये हो सकता है कि उन्हीं अच्छाइयों और भलाइयों की वजह से मिली हो जो तुमने माजी में की है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उस ऐसे घर में जहाँ बहुत ज्यादा समझ लें कि हिंदू रिलीजियोसिटी है, वहां से आपको चुना। पहले आपका सफर एथीज्म की तरफ हुआ, वहां से आपका हाथ पकड़कर इधर लेकर आया, तो कोई ना कोई अच्छाई आपके अंदर होगी। कोई कभी किसी राह चलते की मदद कर दी होगी, कोई किसी के साथ काइंडनेस से आप पेश आ गई होंगी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने उसका आपको एक इनाम इस दुनिया में दे दिया और यहाँ से उसको उसने सही रास्ते पर आपको लगा दिया। एक और वाक़या सुना देता हूँ जो आपसे रिलेट करता है। एक सहाबी हैं एक सहाबी अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो जब हाथ बढ़ाया इस्लाम कबूल करने के लिए, बैत करने के लिए, तो एकदम हाथ खींच लिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ क्यों खींच लिया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले एक शर्त मैं लगाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि वो शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो शर्त यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया हो। तो अब अगर उन गुनाहों के ऊपर मेरी पकड़ अल्लाह को जानने और इस्लाम कबूल करने के बाद भी होनी है, तो फिर इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए अम्र, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम जो कुछ भी उससे पहले एक इंसान करता है, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ भी गुनाह करता है, इस्लाम उन सब को खत्म कर देता है। एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो आपको अगर जहन में कभी ये ख्याल आता है कि आपने अल्लाह को जानने से पहले बहुत से गुनाह किए हैं, तो आपके लिए ये बशारत है कि यही ख्याल एक सहाबी के जहन में भी आया था, और जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिया था वही जवाब आपके लिए भी है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम लाने से पहले जो कुछ था वो सब खत्म है। यहाँ से आज एक नई जिंदगी और एक नया स्टार्ट है। क्या कोई ऐसी गुनाह है जो कभी मतलब माफी मिल ही नहीं सकता?
शिर्क के अलावा कोई दूसरा गुनाह नहीं है, हर नहीं गुनाह की मतलब मुफ्तर आई थिंक इस्लाम सिस्टर ये पूछ रही है इस्लाम कि में आने के बाद इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। सिस्टर, इस्लाम लाने के बाद हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है वो सब के नहीं सब नहीं खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रही। इनका पूछना शायद ये था कि अगर कोई एक्स मतलब मुस्लिम ना रहे नहीं, जब मुस्लिम नहीं थे उस टाइम का कोई ऐसा गुनाह है कि इस्लाम लाने के बाद उसकी माफी नहीं मिलती। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से, अल्लाह की ज़ात से है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ें जो कि इंसान से मुताल्लिक है, मिसाल के तौर पे किसी का कर्जा लिया है, किसी की जो है वो नुकसान पहुंचाया है, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाया है, तो उसकी जो है वो इंसान भरपाई कर ले, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। जी, तो माफ कीजिएगा मैं 2-3 मिनट नहीं सुन पाया था, तो गालिबन आसिम भाई हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बात कर रहे थे, राइट? जी जी हजरत। जी 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 हाँ, ठीक है, सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है और उसने इस्लाम लाने से पहले किसी का पैसा दबा रखा है, तो भाई इस्लाम लाने से वो खत्म नहीं होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन जो गुनाह है उस तरह के खुदा की जात से मुताल्लिक जो गुनाह है वो सब के सब माफ हो जाते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो बाकी अब आप अगली जिंदगी को इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए गुजारें। जो रोशनी अल्लाह ताला ने आपको दिखाई है कोशिश करें कि वो रोशनी दूसरों तक पहुंचे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दीन को समझें, कुरान करीम को अच्छी तरीके से पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, और आप खुद ही कह रही हैं कि आपने हिजाब शुरू कर दिया। अल्लाह ताला मुबारक करे इस सफ़र को और आपके दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस आपके नसीब में हो, ये दुआ कर सकते हैं। जी मेरा भाई भी आएगा, अभी वो घर में है, तो वो जब आएगा वो भी कलमा पढ़ेगा आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ठीक है, बिल्कुल। अगर आप यानी वो अभी आना चाहता है या बाद में किसी वक्त? वो आएगा 1 महीने बाद, मतलब वो अभी 1 घर महीने। में है, मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा, आप घर में नहीं है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको भी कलमा पढ़ाएंगे जब वो आएगा, और अल्लाह ताला आप दोनों के जरिए दीन का पैगाम आम करे। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। चले सिस्टर, फिर सही मुस्लिम अच्छा, साहब आए हैं। सही मुस्लिम साहब आए हैं, माशाअल्लाह जी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खुशी का मौका था तो मैं भी शिरकत करना चाहता था, मैं भी इस माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पार्ट बनना चाहता था, और बड़ी खुशी होती है मतलब देख के कि लाखों करोड़ों बेवकूफ लोगों से कोई एक निकलता है जिसको एक्चुअल में अल्लाह जो है हिदायत से रास्ता। तो माशाअल्लाह, टू वे जर्नी होती है, बहुत खुशी की बात होती है, और हिफान यूनियन की मेहनत है वो रंग ला रही है, और बस यही कि अल्लाह हमारी जो कोशिश है वो कबूल कर ले, और आखिरत में जो है इस वजह से हमें अगर कुछ पॉइंट्स मिल जाए, हमारी मगफिरत हो जाए। आमीन आमीन यही सुम्मा दुआ है आमीन। ह्यूमन आपको, आपके लिए ये चीज इसलिए भी अहम है चूंकि ये आपसे रिलेट भी करती है, ये बहुत रेलेवेंट है ना आपके लिए कि भाई एक ऐसा मौका आपकी जिंदगी में भी आया था कि जब आप इधर उधर जाकर फाइनली एक सीधे रास्ते पर आए, तो इसलिए आप रिलेट कर पाते हैं। बहुत से मुसलमान इस चीज से रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको तो ये दौलत बैठे बिठाए मिल गई। जी, इतनी जगह धक्के खाने के बाद जब आपको सही में वाकई में अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरा एक्चुअल रिजॉर्ट है क्या, और वो देखिए वो बाय चांस ही वो होता है, मतलब क्या क्या कनेक्शन जुड़ते हैं वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये एक किस्मत की बात है कि मतलब इंसान को हिदायत मिल जाए, इससे बड़ी दौलत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इतनी रसूलुल्लाह खुशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूं तो हर सहाबी ने एक्सपीरियंस किया था, ज़ाहिर है कि सहाबी बने ही सहाबी इस्लाम कबूल करके, पहले किसी और दीन पर थे, इल्ला ये कि इस्लाम यानी मुस्लिम माँ बाप के यहाँ उनकी पैदाइश हुई हो, जैसे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन अक्सरियत जो है वो तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। लेकिन इन सब में जो एक्सपीरियंस सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का था वो दूसरे सहाबा का नहीं था। वो कहाँ कहाँ गए, मुल्को फिरे, फाइनली मदीने में आए, मदीने में भी गुलामी वाली जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप अलैहिस्सलाम को टेस्ट किया, फिर जाकर इस्लाम कबूल किया। जी, और इतनी लंबी उम्र, और हो सकता है उनकी वफात पहले हो जाए, ऐसा सही, पॉसिबल था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं।